Good morning, friends. How are you all? Friends, we are in the last day of this week, right? So, friends, we have done up to illustration number 3. Hope you have done the sums in a perfect way. So, friends, today we have to see the illustration number 4. So, ready, all of you? So, friends, we can start illustration number 4. So, what is the topic, friends? Let's see. Following is the trial balance form of Ganga and Yamuna as on 31/3/2017. This is the trial balance. Clearly, they want to mention trial balance of the firm. So already we have discussed that how many accounts we have to prepare. The first, friends, which account we have to prepare? Trading account, right? Second account is profit and loss account. Third is profit and loss appropriation account. Then comes partners capital account. Then comes partners current account. Now, friends, here you can see in this question, partners current account is given to you. Partners current account you can see given to you. So obviously you have to prepare what? Partners current account. And lastly we have to go to balance sheet. Clear? So let's see the sum, how to do this particular sum. So friends, first we are starting with capital. So capital of Ganga and Yamuna, where we have to write? Yes. Either we can go to partners capital credit side or directly we can go to balance sheet liability side also. Right. It is better you prepare the capital account. Right. So we will prepare the capital account. Then comes, friends, current account. So where we have to write current account. Current account we have to mention in partners current account. And you can see that the credit balance is given. So we have to write on credit side. Yes. Then comes sales. Sales is related to goods. So when the sales is related to goods, where we have to write? Trading account credit side. Trading account credit side. Goods return. So which goods it is? It has been given on the credit side. So it is what? It is what? Purchase return. Don't be confused. Whenever it is given on the credit side, it is purchase return. Debit side, it's a sales return. Then comes, friends, bad debt reserve. Bad debt reserve is a reserve which is created on debtor. That is also credit side. That is also credit side. So where we have to write, friends? We have to write in profit and loss debit side. Specimen is there. So what is the specimen? 2 bad debt trial balance, 2 bad debt adjustment plus BDR adjustment, leave one line minus BDR trial balance. But in some cases, bad debt will not be mentioned. Here the bad debt is given to us, so no issue. When the bad debt reserve new is not given, this bad debt reserve directly we can deduct from debtors. हम कहाँ से direct minus कर सकते हैं? Debtors में से हम minus कर सकते हैं. But here there is no such requirement. Okay. Then come, friends, bank loan. Bank loan it's a liability. Liability है. तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटीज में कहा लिखेंगे? बैंक लोन. देन कम्स क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट लायबिलिटी. बिल्स पेएबल वेयर? लायबिलिटी. लोन बोरोड. लोन हमने उधार लिया है. लिया है मतलब लायबिलिटी. राइट. अब ये बैंक लोन जो है वो लंबे समय के लिए होता है, इसलिए इसे कौन सा नाम देंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज. क्रेडिटर्स करंट है, अभी देना है, तो ये जाएगा करंट लायबिलिटीज. बिल्स पेएबल अभी देना है, 1 साल में देना है, करंट लायबिलिटीज. लोन बोरोड, लोन भी हमने लिया है लंबे समय के लिए, तो इट इज ऑल्सो नॉन करंट लायबिलिटीज. राइट. जनरल रिजर्व, ये अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस. कैपिटल के बाद हम लिखेंगे इसको जनरल. पहले हम गिन लेना तो कौन सी चीज कहाँ लिखना है, तो क्या हमें एक अंदाजा लग जाता है कितना लाइन हमें छोड़ना है. ठीक है, तो थोड़ा अंदाजा हो गया, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बताया कि नॉन करंट लायबिलिटी, तो कुछ 4-5 लाइन हमें नॉन करंट लायबिलिटी में छोड़ना है. फिर बाकी तो लास्ट में करंट लायबिलिटी आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं.
नाउ फ्रेंड्स ड्राइंग्स दे के रखा है, तो ड्राइंग्स कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, लेकिन यहाँ पे करंट है तो ये ड्राइंग्स कब कहाँ जाएगा, ड्राइंग्स विल कम इन पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड, करंट के डेबिट साइड में आएगा। देन कम्स परचेसेस, परचेसेस कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, परचेसेस कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देन कम्स गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न ये कहाँ लिखेंगे, ये कौन सा रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है, बराबर, सेल्स रिटर्न, तो ये हम लिखेंगे सेल्स में से माइनस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये कहाँ जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ऑफिस एक्सपेंसेस ये कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। कैरेज इनवर्ड ये कहाँ जाना चाहिए, ट्रेडिंग में। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड कहाँ लिखना है, P&L डेबिट। बैड डेब्ट, बैड डेब्ट ये कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। डेटर्स एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, कैश ऑन हैंड एसेट, बैंक बैलेंस बहुत सिंपल है एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, मशीनरी एसेट, बिल्डिंग एसेट। अब नाम देते हैं, बिल्डिंग हम कहाँ लिखेंगे, नॉन करंट एसेट। मशीन हम कहाँ लिखेंगे, नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट हो गई। बैंक बैलेंस करंट एसेट, कैश ऑन हैंड करंट एसेट, बिल रिसीवेबल करंट एसेट, डेटर्स करंट एसेट, जहां करंट एसेट है वहां इशू नहीं, लास्ट वाला बैड डेब्ट, ठीक है, रिलेटेड टू द विच वन, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैरेज आउटवर्ड ये कहाँ जाना चाहिए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग। ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, बराबर इस तरह से। चलो एडजस्टमेंट देखते हैं। Closing stock is 28,600, but the market value of 20% goods is 10% more than the book value. क्या बोलना चाहते हैं ये, 10% ज्यादा है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था क्लोजिंग स्टॉक में कभी ज्यादा नहीं लेना है, नहीं लेना है, यानी हम कितना लेंगे फ्रेंड्स, वी हैव टू टेक ओनली 28,600, इतना ही लेना है हमें, ठीक है। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब याद करूं किसको देना है इंटरेस्ट, पार्टनर्स को देना है। इफ पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है तो कौन सा अकाउंट करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। डेबिट में हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सही है, और ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड। साथ में लिखा है एनुअल बोनस ऑफ 2000 पेएबल टू ईच पार्टनर। वापस एक तो बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा बोला है एनुअल बोनस, एनुअल बोनस बोला है, तो वापस किसको देना है, पार्टनर्स को ही देना है, तो वापस हम कहाँ लिखेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। Bad debt reserve is to be maintained at ₹3,000 and provide 5% discount reserve on debtors. अब देखो इन्होंने यहाँ पे बैड डेट रिजर्व कितना देके रखा है आपको, 6,000 देके रखा है ना, और यहाँ क्या लिखा है, बैड डेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड एट ₹3,000 एंड प्रोवाइड 5% डिस्काउंट। तो चलो डेटर्स में 2 टिक, राइट, तो डेटर्स में 2 टिक हो रहे हैं, एक तो बैड डेट रिजर्व का और एक डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीन। देखो दोनों सामने मिला, बिल्डिंग में भी पॉइंट है और मशीन में भी पॉइंट। फिफ्थ में ये बोला है परचेस ऑफ 4,000 इज नॉट रिकॉर्डेड बट इंक्लूड इन द क्लोजिंग स्टॉक। राइट फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना क्लोजिंग स्टॉक में कभी कोई प्लस माइनस नहीं होता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में अगर आपने सामान खरीदा है उसकी एंट्री तो आनी ही है। क्लोजिंग स्टॉक में अगर आपने सामान खरीदा है तो स्टॉक में तो आएगा ही, होता है, यानी वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट देता है। यानी हमें सिर्फ ये देखना है कि परचेज ऑफ 4,000 रिकॉर्ड बाकी है,
तो परचेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये हुआ अपना परचेस, और फिर हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर्स। परचेस में और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिटर्स। चलो आगे। रिसीवेबल कमीशन इज 2000। कितना मिलना बाकी है आपको? 2000 मिलना बाकी। कमीशन है तो हम प्लस करेंगे, नहीं है तो हम अलग से लिखेंगे। रिसीवेबल कमीशन 2000 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस 200। ऑफिस एक्सपेंस है हमारे पास, तो इसी में हम क्या कर देंगे? ऐड करेंगे ऑफिस एक्सपेंस। चलो आगे बढ़ते हैं हम। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइन एट 12,000। बोला है कि इन्वेस्टमेंट की कीमत कितना करो आप? 12,000। और यहाँ देके रखा है आपसे 14,000 देके रखा। तो 2,000 रुपए हमें कम करना है, और कहाँ ट्रांसफर करने को बोला है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व देके रखा है, तो इसमें से हम ट्रांसफर करें। आगे बढ़ते हैं। लोन ऑफ 600 वाज गिवन टू एम्प्लॉय। हमने एक लोन दिया है एम्प्लॉय, लेकिन गलती से सैलरी में चला गया है, तो ऑब्वियसली गलती हो गई है। तो सैलरी में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और ये एसेट में लोन के नाम से आएगा, लोन गिवन टू एम्प्लॉय। सही है। अब लास्ट में है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:7। 3:7 का हमें लॉस बताना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो फ्रेंड्स, तो ये अपना मैक्सिमम टॉपिक था। तो शुरू कर रहे हैं। अभी तो बहुत इजी हो चुका है आपको। चलो, फर्स्ट हेडिंग दो, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ गंगा एंड यमुना फॉर देयर एंडिंग ऑन 31/3/2017। और 10 लाइन छोड़ो आप इसमें। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ गंगा एंड यमुना for the ending 31/3/17. 10 line. After that, we have to prepare profit and loss account of Ganga and Yamuna for the ending on 31/3/17. इसमें भी हमें कुछ 15 से 20 लाइन चाहिए, 15 to 20 lines. Leave the space. After that, we have to prepare profit and loss appropriation account of Ganga and Yamuna. इसमें ज्यादा काम दिया हुआ है, इसलिए 10 लाइन छोड़, लीव अराउंड 10 लाइन्स। 10 लाइन्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6 लाइन्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6 लाइन्स। और लास्ट में हम बना देंगे बैलेंस शीट। लास्ट में हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट ऑफ गंगा एंड यमुना। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं काम। ओके, कॉलम तैयार हो गया सबका। तो ये थोड़ा स्पीड में हम करेंगे ये। चलो, कैपिटल बोलो। कैपिटल कहाँ जाएंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। अब ध्यान दो, तो कैपिटल बनाया नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली कहाँ लिखेंगे इसको? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हम डायरेक्ट लिखेंगे कैपिटल गंगा यमुना। ठीक है। दूसरा अकाउंट याद है कौन सा था? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 3,02400। चलो ये भी हुआ। अब दो पॉइंट देखेंगे, सेल्स है और गुड्स रिटर्न। तो सबसे पहले सेल्स, तो ये आ गया सेल्स अपना 1,84,000। गुड्स रिटर्न, ये कौन सा रिटर्न है फ्रेंड्स? परचेस रिटर्न। तो पहले हम क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक, फिर हम लिखेंगे टू परचेसेस, राइट। फिर हम परचेस रिटर्न डायरेक्ट लिख सकते हैं, और उसके बाद ये प्लस अनरिकॉर्डेड, फिर हम प्लस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो माइनस परचेस रिटर्न हमने किया। आफ्टर परचेस रिटर्न बैड डेट रिजर्व और बैंक लोन। अब बैड डेट रिजर्व के लिए हमें क्या चाहिए? स्पेसिमेन चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, यहाँ पे बैड डेट रिजर्व ओल्ड, राइट। फिर कौन सा पॉइंट था? जस्ट फॉरगॉट इट। बैंक लोन और क्रेडिटर्स। बैंक लोन याद है? नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में देखो बैंक लोन भी आ गया, और साथ में क्रेडिटर्स पे टिक है, इसलिए 1 लाख। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद क्या है? बिल्स
पेएबल, क्रेडिटर के बाद बिल्स पेएबल, लोन बोरोड और जनरल रिजर्व, तीनों एक ही जगह जाना चाहिए। चलो देखते हैं। बिल्स पेएबल, bills payable, you can see current liability, right, loan borrowed और general reserve में टिक है, इसलिए inner column, ठीक है। इट्स वेरी इजी वन, बस लिखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। देन कम्स डेबिट साइड। डेबिट में देखो पहला नाम ड्रॉइंग्स लिखा है, तो कहाँ लिखना है ड्रॉइंग्स? पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड, तो करंट में जाते हैं, उसके डेबिट में देखते हैं टू ड्रॉइंग्स, सही है। ड्रॉइंग के बाद आपको दिया हुआ है, राइट, नेक्स्ट पॉइंट है परचेसेस और गुड्स रिटर्न, बराबर, परचेसेस और गुड्स रिटर्न रिलेटेड टू ट्रेड, तो ये आ गया आपका परचेसेस। और गुड्स रिटर्न जो है वो कौन सा रिटर्न है आपका? सेल्स रिटर्न, वो यहाँ पे है। फिर है ओपनिंग स्टॉक, शायद, हाँ, ओपनिंग स्टॉक है, सैलरी है और ऑफिस एक्सपेंसेस, तीन देख लिया। ओपनिंग स्टॉक, बराबर, फिर सैलरी दिखाई दिया, वो भी यहाँ पे टिक मार्क है। फिर ऑफिस एक्सपेंस दिखाई दिया मुझे, उस पे भी टिक है, उस पे भी लाइन दी। 3 पॉइंट हुए, ठीक है, बहुत इजी है, इसमें बहुत सिंपल है। फिर है कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड और बैड डेट। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू गुड्स है, तो ये रहा अपना कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड ये रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है बैड डेट, ये रहा बैड डेट। चलो इसके बाद देखते हैं क्या है। बैड डेट के बाद है डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है और कैश ऑन है। डेटर्स, डेटर्स बोलो कहाँ जाना चाहिए? एसेट, जिसके पास से हमें पैसे लेने हैं, उनके पास से पैसे लेने हैं, तो ये आ गया डेटर्स, राइट। फिर क्या था? कैश ऑन हैंड, ये भी हमारे लिए एसेट, ठीक है। तो डेटर्स एंड कैश ऑन हैंड। बिल रिसीवेबल, वो भी कहाँ जाएगा? करंट एसेट। बैंक बैलेंस कहाँ जाना चाहिए? करंट एसेट। फिर इन्वेस्टमेंट मशीनरी बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, करंट एसेट, बैंक बैलेंस, ये करंट एसेट। फिर हमको क्या क्या नाम दिया है? पहला नाम है बिल्डिंग का नाम, दूसरा नाम है मशीन और तीसरा नाम हमको क्या दिया? राइट। अब आगे चलते हैं तो इसके एडजस्टमेंट्स, जो बहुत इजी है, मेन टॉपिक हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक बोला है 28,600 ही रखना है, बढ़ाना नहीं है और घटाना भी नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक चला जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक यहाँ। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बोनस देने की बात हुई, राइट, देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रहा 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बोनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, अगर पार्टनर्स को देना है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां से ये ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड में। वही सेम कंसेप्ट अपनाना है बोनस के साथ, बोनस भी हमें देना है, तो ये भी एक्सपेंस ही है और ये भी ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड। तो ये हुआ अपना सेकंड। थर्ड में देखो क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास। बैड डेट 3,000 करो, बैड डेट रिजर्व 3,000 करो और 5% डिस्काउंट रिजर्व, तो हम डेटर्स में जाएंगे, डेटर्स में जाएंगे, डेटर्स में से माइनस करेंगे, माइनस बीडीआर और साथ में माइनस डिस्काउंट रिजर्व, ये दोनों हमें निकालने पड़े। बैड डेट रिजर्व 3,000 और डिस्काउंट, और फिर हम इसको ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बैड डेट रिजर्व 3,000 और डिस्काउंट रिजर्व, राइट, तो यहाँ पे है
डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, ये नया वाला है, राइट। प्लस माइनस करेंगे तो आएगा। कैसे आया वो भी एक बार बता देता हूँ, इजी है। 67,000 में से 3,000 रुपए गए तो कितना बचा? 64,000। तो 64,000 का 5% ये आंसर आएगा 3200। ओके, फिर उसको माइनस करेंगे तो ट्रांसफर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। फिर बोला गया है कुछ रिसीवेबल, हाँ सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑन 10% बिल्डिंग एंड मशीन। दोनों पॉइंट इजी है। मशीन और बिल्डिंग में से दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस करके पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर, राइट। परचेज ऑफ 4,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। परचेज हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए हमने देखो यहाँ क्या लिखा है, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज किया। और फिर बाकी ये जो परचेज हुआ है इसको और एक जगह हम बताएंगे, वो है हमारी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में हम क्या करेंगे? अनरिकॉर्डेड परचेज। अब मेन पॉइंट था ये, ठीक है, इस पे थोड़ा आप ध्यान दें। फिर है कमीशन 2,000 मिलना बाकी है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 200। कमीशन मिलना बाकी है तो इनकम है, इनकम है तो कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग कमीशन। और हमने इनकम पे लिखा है तो हमको आज नहीं तो कल मिलेगा, तो बैलेंस शीट के कहा जाएगा? एसेट। देखो एसेट। वैसे ही आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन। फिर क्या बोला था उन्होंने? एक और पॉइंट था ना साथ में, याद है? चलो देखते हैं। एंड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस में 200 लेना बाकी है, तो ये रहा ऑफिस एक्सपेंसेस। इसे हम यहाँ प्लस करेंगे तो अब बताओ ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज, ठीक है। फिर है इन्वेस्टमेंट 12,000 करो। अब इन्वेस्टमेंट देखो दिया हो जाता है एसेट। अब 14,000 का एसेट को, इन्वेस्टमेंट को बोला है कि 12,000 करो। तो ये देखो तो कितने का गैप लग रहा है? 2,000 का गैप है। तो अब ये 2,000 हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कहाँ ट्रांसफर करने को बोला है? जनरल। तो ये 2,000 यहाँ पे, तो 7,600 यहाँ पे। फिर बोला है आपसे लोन ऑफ 600 वाज गिवन टू एम्प्लॉय। लोन दिया हमने, किसको दे दिया? एम्प्लॉय को दिया, लेकिन गलती से कहाँ लेके चले गए? सैलरी में डाल दिया। तो सैलरी में से क्या करवाएंगे? माइनस। तो सैलरी में से माइनस करेंगे 600 और ये ट्रांसफर कर देंगे हम इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, ठीक है। लायबिलिटीज में एसेट में जाएगा, लोन टू एम्प्लॉय। बस ये मेन काम है। फिर रेशियो है 3:7, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना। एक बार देख लेते हैं, देखो कैसे होता है। सबसे पहले ट्रेडिंग का टोटल करेंगे तो यू विल गेट दिस 2,11,000। यही टोटल सामने भी लिखेंगे और माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 85,200। इसे हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर 85,200। फिर हम इसको प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 88,800। फिर हम इसको माइनस करके हमारा आंसर आएगा 49,100। इसे भी ट्रांसफर करेंगे, पता ही है आपको, पहले ट्रेडिंग से पीएनएल, पीएनएल से पीएनएल, फिर हमारा आंसर आएगा ये। और रेशियो आपको पता है 3:7। यहाँ से हम लेके जाएंगे इसको करंट में, यहाँ लिखेंगे और फिर प्लस माइनस करके हमारा बैलेंस आएगा 70402346। ये आने के बाद हमारा चला जाएगा बैलेंस शीट 7040 और 2346। फिर हमारा फाइनल टोटल आएगा 136,600। ओके, तो हमारा फ्रेंड्स फोर्थ सम हो चुका है। नेक्स्ट पीरियड में हम फिफ्थ सम देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।